Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is auxiliary verbs. As you know, in our English language, verbs are divided into two classes. So these are lexical verb and auxiliary verbs. So auxiliary verbs are divided into three parts: primary auxiliary verbs, modal auxiliary verbs and marginal auxiliary verbs. So what is a lexical verb and what is an auxiliary verb? So let's start. So lexical verb are those verbs which are used as a main verb in a sentence. कि लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं? ये वो वर्ब होती हैं जो कि सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म. ओके, सो ये जो वर्ब होती हैं ये सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब में यूज़ की जाती हैं. इन्हें हम इनका जो नेक्स्ट जो हम दूसरा नाम जो बोलते हैं दैट इज़ ऑर्डिनरी वर्ब्स. Okay, that is called lexical verbs. Like I write a letter, he wrote a letter, he's writing a letter. So these are lexical verbs. So what are auxiliary verbs? Auxiliary verbs are primary auxiliary verbs, modal auxiliary verbs, marginal auxiliary verbs. So primary auxiliary verbs are to do, to have, to be, and modal auxiliary verbs are can, could, may, might, will, would, must, ought to. And marginal auxiliary verbs are used to, dare and need. So जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो वर्ब टू बी से, जैसे कि बी, एम, इज, आर, वॉज, व, बीन, बीइंग. वर्ब टू हैव जैसे कि हैज़, हैव, हैड, हैविंग. एंड वर्ब टू डू से क्या बनती हैं? डू, डज, डिड. सो दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये वर्ब्स किन से बनती हैं? टू डू से हम क्या बनाएंगे? डू, डज, डिड. एंड टू हैव से हैज़, हैव, हैड, हैविंग. एंड बी वर्ब से बी, एम, इज, आर, वॉज, व, बीन, बीइंग. सो दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें, सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to. These all are modal auxiliary verbs. And marginal auxiliary verbs, marginal auxiliary verbs is used to, dare and need. These are called marginal auxiliary verbs. So what is a modal auxiliary verbs? So you can see modal auxiliary verb like can, must, could, would, may, might, etc., which are used with main verbs to express ideas such as possibilities, permission, necessity, obligation, etc., are called modal auxiliary verbs. कि ये जो verbs होती हैं जैसे कि can, must, could, would, may, might, etc., और ये used with the main verbs, मेन वर्ब्स के रूप में यूज़ की जाती हैं. किस लिए? टू एक्सप्रेस आइडियाज़ लाइक पॉसिबिलिटीज़, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन. सो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ विल डिस्कस द यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द यूसेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. So its first rule is use of can. कि जो can होता है it is used to express power, ability and capacity. कि can का use पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है. एग्जाम्पल देखिए. He can lift the box. I can swim across the river. You can speak English. She can solve this problem with ease.
and I can defeat my opponent. So he can lift the box means उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उस बॉक्स को उठा सकता है. So here can is used to express power. I can swim across the river. उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है कि वो रिवर के अंदर तैर सकता है. You can swim English. You can speak English means वो इंग्लिश बोल सकता है. उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, इतना एबल है वो इंग्लिश बोलने की. सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद ईज. वो इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है. एंड आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, कि मैं अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधी को हरा सकता हूँ. यानी मैं इतना, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं उसको हरा सकता हूँ. तो ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कैन पावर को, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है. Not. In such sentences, can is used to denote the meaning be able to, be capable of, and know how to. Like, you can speak English means you are able to speak English, you are capable of speaking English, and you know how to speak English. कि इन सेंटेंसेस में अगर आप यूज़ कर रहे हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो उसका मीनिंग होगा कि भाई यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस परमिशन, कैन इज यूज टू सीक परमिशन, टू आस्क परमिशन. Example, you can go now, you can buy pens from the shop, and can I go to the cinema tonight? Stop, you can't do that. So not in such sentences, can is to denote the meaning be allowed to, be permitted to. तो यहाँ पे कैन का यूज़ परमिशन मांगने के लिए, टू आस्क परमिशन, उसके लिए यूज़ किया गया कि भाई तुम वहाँ जा सकते हो. अब यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम, अब तुम शॉप से पेन खरीद सकते हो. कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट, क्या मैं आज रात सिनेमा देखने के लिए जा सकता हूँ. स्टॉप, रुको, तुम ये नहीं कर सकते हो. मीन्स यहाँ पर परमिशन के लिए कैन का यूज़ हुआ है. सो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें कैन को शो किया गया है टू डिनोट मीनिंग बी अलाउड टू एंड बी परमिटेड टू. लाइक यू कैन गो नाउ मीन्स यू आर अलाउड टू गो, कि अब आपको जाने की अनुमति है. यू आर परमिटेड टू गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हें परमिशन मिल गई है कि तुम जा सकते हो. तो परमिशन जो देना होता है, तो उसका जो भाव होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन और मे का यूज़ करते हैं. सो परमिशन लेने के लिए, अगर परमिशन लेने की बात हो तो परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का जो यूज़ होता है वो ज़्यादा सूटेबल माना जाता है. तो अगर हम लोगों को परमिशन लेने के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर हमें किसका, कैन का यूज़ ना करके हमें किसका यूज़ करना चाहिए, हमें कैन का यूज़ ना करते हुए हमें मे का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट रूल देखिए, इंस्टेड ऑफ कैन द यूज ऑफ मे इज कंसिडर्ड टू बी मच बेटर टू एक्सप्रेस परमिशन, दैट्स वी मस्ट प्रेफर द यूज ऑफ मे. सो दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, हमने पहले से बात कर ली इसके बारे में कि हमें अगर परमिशन लेने के बारे में बात करनी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो मोस्ट सूटेबल होता है वो होता है मे. नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी,
कि जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है वहाँ उसको एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल, everyone can make a mistake and it cannot be true. Electricity can be dangerous. So यहाँ पे जो can का यूज़ है वो to express theoretical possibility, जो theoretical possibility होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है कि everyone can make a mistake, कि हर एक कोई ना कोई गलती करता है, कर सकता है. ह्यूमन बींग्स तो गलती करते ही हैं, तो हर एक कोई ना कोई गलती कर सकता है. एंड इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता है, इसमें स्लाइट सी पॉसिबिलिटी है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी है वो खतरनाक हो सकती है. आग अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से यूज़ नहीं करते हो तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है. नेक्स्ट रूल इसका है टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, कि कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, कि कैन का यूज़ हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है. एग्जाम्पल, आ डिसाइडफुल पर्सन कैन डिसीव यू, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन. सो यहाँ क्या बताया गया है कि जो एक डिसाइडफुल पर्सन होता है उसका नेचर ही क्या है, धोखा देना. तो वो क्या करेगा, वो धोखा देगा, वो धोखा दे सकता है. एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, और एक जो ईमानदार आदमी है उसका नेचर क्या है, वो ईमानदार है, वो उसको ईमानदारी की आदत है. तो ही कैन नॉट हार्म एनीवन, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. So these are the uses of can, कि can is used to express power, ability and capacity. Second is can is used to permission, to give permission, to ask permission. And can is used to express theoretical possibility. And last is can is used to express habit or nature. So these are some uses of can, and I think these all are clear to you. So we'll meet in our next video. We'll come with a next video of could. So bye and have a nice day.